Greetings everyone. I welcome you back again to the biology lab on a new fresh topic, and the topic is human circulatory system. So me and my friend Mr. Torso welcomes you, and let us see what does our heart holds, right? So what happens, our body also needs a transport system to circulate what? To circulate the oxygen, carbon dioxide, digested food, hormones, isn't it? And of course the waste generated into various cells, and they need to be put to the respective places. From there they can be excluded from the body. So we know that our body also needs a circulatory system, a transport system, right? The previous knowledge says that you have or we have a circulatory system comprising of human heart and blood vessels, isn't it? Blood vessels, we know about arteries, veins, and of course capillaries. So in this class we are going to study about all that. But first of all, let Mr. Torso show you the location of the heart, right? Heart is a muscular organ. Does it has a bone? No, it's very soft. It's a muscular organ. It is protected inside the rib cage. So someday Miss Kelly will tell you. But see the lungs, and I'm just removing this lungs. Mr. Torso is very nice. He allows us to see all these things. Now look at this. This is the location of the heart. पढ़ाने के लिए हम लोग आपको बताते हैं कि ऊपर लंग्स है, नीचे हार्ट है, but it is not so. है ना? Lungs and heart are in this thoracic cavity or chamber protected by the rib cage. I am taking out this heart. Okay, let me take out both the lungs first. I am not Corona, I am just Garima. I am just trying to show you the location. Mr. Torso, please help me. Yes, he's a nice guy. So this is the heart. This is the location of the heart. And what is the size of the heart? You can take it back. I'll put it later on. So what is the size of this muscular heart, which actually works as a pacer? It gives pace to the blood to flow in the body up and down, right? So we say it's pacer. That is why the word comes pacemaker. It's a pacemaker. It generates a pace in the blood. So we can commonly call it pump, but actually it's a pacemaker. And that is how people who have heart diseases, they get the heart transplant or they get a pacemaker. क्यों? क्योंकि उनके blood flow जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो गया होगा, and that is why the pacemaker is required. All right. So what is the size of this heart? The size of this heart is the size of your left fist, right? So you can see the size of your heart. The size of your heart is equivalent to your left fist, right? Now, you know that humans, mammals, and the other aves, the birds, and some of the reptiles, our energy requirement is very high, right? So when our energy requirement is very high, and you know that energy is released by the oxidation of glucose, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन हमें चाहिए. तो अगर हमारा सिस्टम ऐसा है जैसा कि एम्फीबियंस का है, जैसा कि फिशेस का है, पिसीज ग्रुप का है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज देयर. Which blood I am talking about? I am talking about the oxygenated and deoxygenated blood, right? तो अगर उनकी मिक्सिंग होगी then definitely जब सेल हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कर रही है तो वो ढूंढेगी कि भाई कहाँ पर ऑक्सीजन है, कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है.
इसीलिए द नेचर हैज डेवलप्ड अ मार्वेलस हाईली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम of human heart or the heart in general for mammals and aves, where the mixing of blood is not allowed. What blood? Oxygenated and deoxygenated blood does not mixes up. So before I move further, let us know about the structure of the heart. ऊपर का नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं. Right now our concern is this, right? So heart is divided into 4 chambers. अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो there are 4 chambers, 1, 2, 3, 4, 2 upper, 2 lower, right? And this is the right auricle, this is the left auricle. अब आप बोलोगे कि मैम आप उल्टा कर रहे हो, हमें तो ये लेफ्ट दिख रहा है, ये राइट दिख रहा है. No. When we study about our organ, we stand like this. So this is my right, this is my left. All right. So this is the right atrium भी कहते हैं, right auricle भी कहते हैं. This is the left atrium or left auricle, and then we have right ventricle and left ventricle. These are the 4 chambers of the heart which do not allow the blood to mix. Alright. Now let us study how does it work. See what happens. You know it that what is the sound of the heart. अभी तक आपको पता होगा धक धक with the धक धक girl. No, it's not धक धक. We will know today what is the sound of the heart and how is it generated. See, you know it that suppose you have taken a balloon, you fill half water into it. आपने होली में भी बलून्स में खेला होगा. अगर आप ऊपर में दबाते हो पानी को तो सारा पानी नीचे चला आता है. And when you contract this, the water goes here. Same thing is happening here. What is happening? Look here. Now this is the right auricle. इसमें हमारी 2 वीना कावा आ रही हैं. जो पूरी बॉडी से आपको पता है ब्लड कलेक्ट कौन करता है? वेन्स. एक्सेप्ट 1, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना. तो वेन्स ने सारा ब्लड कलेक्ट किया और सारी वेन्स ऊपर से एक मोटी वेन में मिली और नीचे का लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ने सारी वेन्स एक मोटी वेन में आई, है ना. छोटे छोटे पाइप से मिलकर एक बड़े पाइप में मिल रहे हैं. सेम थिंग इज हैपनिंग. So that vein is known as vena cava, right? Now vena cava जो ऊपर से आ रही है वो सुपीरियर वीना कावा बोली जाएगी और जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है that will be known as posterior or inferior vena cava. So it is superior vena cava and inferior vena cava. ये दोनों वीना कावा ब्लड लेकर कहाँ पहुंच रहे हैं? राइट ऑरिकल में. राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है. राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा. जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये रिलैक्स कर रहा है, ठीक है. राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल ने रिलैक्स किया और ब्लड रिसीव किया, ठीक है. यहां से ये ब्लड, अच्छा अब आप देखिए यहाँ पर है बाइकस्पिड वॉल, यहाँ पर है ट्राइकस्पिड वॉल. व्हाट इज द पर्पस ऑफ वॉल? दैट दे डू नॉट अलाउ द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर सीधे जाता जाता ब्लड उल्टा जाने लगेगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम आ जाएगी, isn't it? That is why they have left side we have bicuspid wall, right hand side we have tricuspid wall. Okay. Now what is happening? Blood has come to the right ventricle and from right ventricle it goes to the pulmonary artery. यहाँ पर function उल्टा होता है. This is the exception. All the arteries carry the oxygenated blood except the pulmonary artery. All the veins carry the deoxygenated blood except the pulmonary vein. Pulmonary मतलब वो हार्ट से निकलकर आ रही है या जा रही है, ठीक है.
सो राइट वेंट्रिकल से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी का था, ये कहाँ गया? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेके कहाँ गई? लंग्स में। किस लिए? लंग्स में ही आपको पता है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कहाँ पर हो रहा है? बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं हार्ट में। नो, द एक्सचेंज ऑफ gaseous exchange of oxygen and carbon dioxide is taking place in the lungs through the capillaries in the alveoli. आपने रेस्पिरेशन पहले पढ़ा है, वहां पर ही आप इसको फिर से देख सकते हैं, ठीक है। So this pulmonary artery is taking the deoxygenated blood to the lungs. lungs में क्या हो रहा है भाई? lungs में क्या हो रहा है? lungs में कैपिलरीज होती हैं, विच इज द फाइनेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स, और जो ब्लड का एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज, वो हो रहा है। अब क्या है? अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से पल्मोनरी वेन लेके आ रही है। देखिए थोड़ा सा बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शन हो गया है। ये पल्मोनरी वेन है जो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, और कहाँ आ रही है? लेफ्ट ऑरिकल में, राइट। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है हार्ट में से, कहाँ लेके आ रही है? लेफ्ट ऑरिकल में। ऑरिकल को ब्लड रिसीव करना है, तो जब रिसीव करना है तो आप खोल दोगे ना, अपनी हथेली फैला दोगे, रिलैक्स करोगे, लेकिन ये अगर रिलैक्स है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब इन्होंने इसमें ब्लड डालना है, कोई बात नहीं, लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा ब्लड को रिसीव करने के लिए, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट साउंड इज नोन एज लब डब। Is that clear? This sound is known as lub and dub. Okay. So अब हमारा ब्लड आ गया है यहाँ पर भी बाइकस्पिड वॉल्व है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये ब्लड वापस बैक फ्लो ना करे, उल्टी दिशा में नहीं जाए। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये सारा का सारा ब्लड एक एओर्टा, जो सबसे मोटी हमारी आर्टरी होती है, दैट इज नोन एज एओर्टा। सो वो एओर्टा में जाता है, एओर्टा से वो सारी की सारी आर्टरीज लेके पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलती हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ब्लड सर्कुलेशन टेक्स प्लेस, राइट। नाउ ये चेम्बर्स को एक मस्कुलर वॉल डिवाइड करती है। वी कॉल दिस वॉल, वी कॉल इट एज सेप्टम। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट सेप्टम। नाउ ब्लड हर बार यहां से पंप हो रहा है ना, यहां तो रिसीव हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट करके इनको दे दे रहे हैं, लेकिन चाहे लंग्स में जाए, चाहे वो लंग्स से आए और फिर पूरी बॉडी में एओर्टा में जाए, ब्लड का प्रेशर ज्यादा कहां पर है? लोअर पार्ट में। दैट इज व्हाई दिस पोर्शन इज लिटिल ब्रॉडर। क्यों थिक है? ताकि वो ब्लड के प्रेशर को झेल सके, बर्दाश्त कर सके, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ब्लड इज सर्कुलेटेड इन आवर बॉडी, राइट। नाउ व्हाट इज अनदर वर्ड कम्स? डबल सर्कुलेशन। ऑफ कोर्स डबल सर्कुलेशन हो रहा है। आप ये हार्ट है, आप देखिए एक बार पूरी बॉडी से ब्लड आया, गया लंग्स में, लंग्स में ब्लड प्योरीफाई हुआ, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेशन हुआ, और वापस आया पल्मोनरी वेन से फिर से हार्ट में, और यहाँ से ये फिर से बॉडी में जा रहा है। तो क्योंकि ब्लड 2 बार हार्ट में आ रहा है, जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। What is the requirement? Requirement of double circulation is very much into the warm-blooded animals. मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती जा रही हूँ, बुक में आपके ये वर्ड्स नहीं हैं, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो वीडियो बार बार देख सकते हैं आप।
डबल सर्कुलेशन किस में होता है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। क्यों वार्म ब्लडेड एनिमल्स में होता है? इसलिए क्योंकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है, सेम रहता है। बाहर बर्फ पड़े कि बहुत हाई टेम्परेचर हो, डज नॉट मैटर। फॉर एग्जाम्पल अस, हमारा एवरेज बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहना ही रहना है ना। तो ये अंदर की इंटरनल हीट को बनाए रखने के लिए हमको कंटिन्यूअसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे होगी? व्हेन वी हैव अ हाईली सोफिस्टिकेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर मिक्सिंग ऑफ ब्लड डज नॉट हैपन। ऑलराइट, सो मिक्सिंग ऑफ ब्लड के लिए हमारे पास 2 ऑरिकल या एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल है, सेप्टम से डिवाइडेड है, वॉल्व्स है इनमें, ताकि ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो। कहाँ होता है? एवीज हो गए, बर्ड्स और मैमल्स। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, इसलिए हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव दिस डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एम्फीबियंस एंड फ्यू ऑफ द रेप्टाइल्स। दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। तो क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है, दे गो फॉर हाइबरनेशन, है ना। आपको पता है हाइबरनेशन क्या होता है? कि बहुत ठंडक है या बहुत गर्मी है, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब हुआ? बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री, तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी 40 डिग्री, दिक्कत हो जाएगी। तो वो हाइबरनेट करने बिल में घुस जाते हैं या अंधेरी जगहों पे घुस जाते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर कंपेरेटिवली 40 के बजाय 35-30 होगा, राइट। या टेम्परेचर आपका 4 डिग्री 2 डिग्री हो गया तो भी उनको दिक्कत है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी 2 डिग्री हो जाएगा, इसलिए वो ऐसी वार्म प्लेसेस में घुस जाते हैं, हाइबरनेट करते हैं, isn't it? So that is why because they have a 3 chambered heart, जहाँ पर mixing of blood quite possible है, होती है ना। Let's talk about fishes. Fishes have a 2 chambered heart, है ना। So when they have a 2 chambered heart, डेफिनेटली डायरेक्ट डिफ्यूजन कहाँ पर हो जा रहा है? फिश में गिल्स में ब्लड आ रहा है कैपिलरीज से, वहीं पर ही उसका डिफ्यूजन हो जा रहा है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज हो जा रहा है। तो फिश हैव, दे आर कोल्ड ब्लडेड। फिश ऑल्सो माइग्रेट, है ना, जहाँ बहुत ठंडा पानी हो गया तो वो नियर बाई वाटर बॉडीज में जो भी कनेक्टेड हैं चले जाते हैं, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन द इंटरनल, no, they don't have to maintain. Their temperature is changed with respect to the external atmospheric temperature, and to save themselves they need to migrate, right? So that is the reason mammals and species, they have 4 chambered heart. Apart from that, the other parts of the circulatory system, first is heart, then we have blood vessels, arteries and veins. Differentiation आपको पता ही है, the differentiation is that arteries are deep seated, है ना, अंदर की ओर होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हार्ट से ब्लड लेके निकल रही हैं, the pressure is very high, right? So अगर वो ऊपर रहेंगी और एक्सीडेंट हुआ, बहुत फ्लो से, प्रेशर से ब्लड निकलेगा and it could be fatal very soon. So that is why आगे nature is beautiful. इसने क्या किया? आर्टरीज आर डीप सीटेड, और जो हमें सुपरफिशियली दिख रही हैं ये वेन्स हैं, ये पूरी बॉडी से ब्लड लेके लौट रही हैं, एंड क्योंकि ये लौट रही हैं इसमें ब्लड प्रेशर उतना नहीं है, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स दी हार्ट, राइट। इसीलिए जो आपको इंजेक्शंस एडमिनिस्टर किए जाते हैं या आईवी दी जाती है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, वो सब वेन्स में, क्योंकि आर्टरीज आर डीप सीटेड, नेचर, गॉड हैज प्रोटेक्टेड इट, इट इज केप्ट इनसाइड द, deep inside the body, all right. Then arteries do not have valves, whereas veins have valves. What is the function of the valve? It checks the backflow of the blood, or it stops the, or it prevents the backflow of the blood,
right? So these are the main differences. Veins are thin walled, arteries are thick and elastic because the blood is flowing with a great pressure. Now when it comes to blood pressure, आपने सुना होगा लोगों को बीमारी है, बीपी बड़ा हाई है. So what is that? है ना, बीपी हाई का मतलब है जो ब्लड निकल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वी कॉल इट सिस्टोल. And what is the systolic pressure? Around 120 mm of the mercury, that is Hg. क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है बीपी मेजर करने के लिए, that is स्फिग्नोमैनोमीटर. ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर में मर्करी से ही तो हम देखते हैं ना, प्रेशर पंप करते हैं. सो जो ब्लड निकल रहा है वो हाई प्रेशर से निकल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए निकल रहा है, तो वो सिस्टोलिक प्रेशर है. सो वो ह्यूमंस का अराउंड 120 mm पर मर्करी होता है, राइट. जो वापस आ रहा है ब्लड वो डायस्टोल है ना, रिलैक्स्ड है. सो वो डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, विच इज अराउंड 80. सो ह्यूमंस का जो नॉर्मल बीपी रेंज है दैट इज 120 सिस्टोलिक and 80 diastolic. That's the number. All right. Now one more thing is there, and that is platelets. So in class 7th you have studied in detail about the platelets, that whenever there is an injury, you know, if the blood will keep on flowing, you know, the person have the chances to die. To stop that, you know, immediately wherever there is a cut or a wound, what do? We press it, है ना, बांध देते हैं, otherwise वो flow करता रहेगा. We treat it, we stop it. उतनी देर में क्या होता है, humans की blood clotting time is 4 to 6 minutes. उतनी देर में एक थ्रोम्बिन करके प्रोटीन होता है हमारे ब्लड में, उसका प्री वर्जन इज प्रोथ्रोम्बिन, और ये थ्रेड्स बना जाता है जिसमें कि ये डेड ब्लड सेल्स फंस जाती हैं नेटवर्क में. तो जो आपकी चोट सूखती है थोड़ी सी, उस पर आपको थिन जो ब्लड की क्रस्ट दिखती है, दैट इज बिकॉज प्लेटलेट्स आर देयर एंड दे हैव क्लॉटेड दी ब्लड. वो ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं. तो ये काम कौन करता है? प्लेटलेट्स, राइट. इसके अलावा एक चीज और होती है, लिम्फ. लिम्फ क्या होता है? ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है कहीं ना कहीं से ये लीकेज हो जाती है, रिश्ता है. सो इट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, सम ऑफ द ब्लड सेल्स. तो ये पतली पतली कैपिलरीज से थोड़ा थोड़ा ऊज आउट होके हमारी बॉडी में करते करते लिम्फ कैनाल्स बन जाती हैं, लिम्फ वेन्स बन जाती हैं, और फिर ये इकट्ठी होती है लिम्फ नोड पे. एट टाइम्स दे कैरी द digested fat etc, and they are colorless in nature, right? And at times they work as they take out the excretory products also, right? So that is the lymph for you. And with this children we finish off the circulatory system. It's very easy. आपको देख के डर लगता है, but if you draw the diagram and when you keep on drawing and telling yourself, okay, this is the right atrium, it is receiving the blood from the vena cava, फिर उसमें contraction हुआ, the blood is moving into the right ventricle, there are tricuspid walls to check the or to prevent the backflow of the blood. It becomes really easy. It is not at all difficult. All right. So if there is any doubt, you can always ask me in the comment section. I am always available to solve your doubt. Me and my friend, we are available, right? Thank you very much. Happy learning. Keep healthy.